First of all, you need to understand the question, then you need the articulation, and then you start writing the answer within time bound manner. So these three are the keywords: medieval Indian, temple and sculpture. हमें exactly stick to the question, okay? Exactly जो question पूछा है, you need to understand that. तो सबसे आसान, बहुत ही आसान तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का कि जो थीम आपने एक्सट्रैक्ट की है उस थीम के बेस्ड पे ही अपना इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, ठीक है? ये एक तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का. Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Pooja Sharma and today I am here again for another session which is related to UPSC Mains Examination 2025. Okay, so let's see which important topics we are going to cover today. So today our discussion is going to focus on these four aspects. Okay? First aspect is how to write answer in UPSC Mains. Again, this is the most important aspect in general in mains examination. Second, we are going to discuss about the marking scheme. Then we are going to discuss about the word limit to write each answer, not only in GS, in optional also and in essay also. Okay, how can you manage your time? Then we are going to know about the time to write each answer again in your option also, in your essay also, in your GS papers also. So without let's start with our first aspect. So here I am not going to give you the theory, okay, that how to write means answer writing, कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. मैं सीधा एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगी और उस एग्जाम्पल से हम ये सीखेंगे कि मेंस के आंसर राइटिंग इन जनरल करनी ही कैसे है. मैंने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन उठाया है हिस्ट्री का, 2022 का PYQ है ये. So what is the question here? How will you explain the medieval Indian temple sculpture represent the social life of those days? And you have to write this answer in 150 words. अच्छा, ये 150 वर्ड जो लिखे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है आपकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट, मैक्सिमम वर्ड लिमिट. अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम में दे आर गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स. एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि आपकी लिखने की जो डेंसिटी है, जितना आपने कवर किए हैं पेजेस, उसके अकॉर्डिंग दे कैन ईजिली टेल दैट यू हैव एक्सीडेड योर वर्ड लिमिट्स और नॉट. एडवाइजेबल क्या है कि वर्ड लिमिट से एक्सीड मत ही होना, ठीक है? क्योंकि जितना पूछा है उतना वर्ड, यही तो ट्रिक है. दिस इज द एक्चुअली द आर्ट. You have to summarize everything, even if you know a very little about a particular answer. For example, about this question, let's say it is a very specific question. It is not a very generalistic question. It is a specific question. You need to know about the medieval Indian temple sculptures. So in specific question, you don't have much knowledge. You are going to have a very limited knowledge. You will be knowing very limited, but you have to increase your content and you have to write 150 words. Sometimes you have too much of knowledge. You have too much of knowledge. For example, if UPSC is asking a very general answer that tell me about the society of Vedic period. अच्छा, सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड, उसमें तो बहुत सारे एस्पेक्ट है और आप इतने सारा बेसिक बुक्स पढ़ के आते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट भी आपके पास होता है. उसको हमें क्या करना है, उस कंटेंट को हमें कंसाइज करना है, उसको हमें समराइज करना है. तो कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है ऐसा जिसके बारे में आपको बहुत सारा कंटेंट है आपके पास, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपके पास बहुत कम कंटेंट होगा. तो इन दोनों केसेस में हमें फाइनली अपने वर्ड लिमिट को उतने ही लिमिट पे लेके जाना है जितना आपसे पूछा गया है. अच्छा, दिस इज हाउ योर आंसर शीट इज गोइंग टू लुक लाइक, राइट? अच्छा, ये तो मार्केट मिल्क के वो है. यूपीएससी में यहाँ पे एक अलग से बॉक्स होता है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर, एंड ऑन एवरी पेज दिस क्वेश्चन is going to be there. For example, if you start from your question number 3, you're just going to mark question number 3, you are going to answer it. अच्छा, क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आप मत लिखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप फिर से क्वेश्चन लिखोगे फिर उसका आंसर लिखने बैठोगे. अगर आपने यहाँ पे बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इन योर GS पेपर 1, then you need not to write this whole question here. You start directly with your answer. You are going to write your answer here. If it is a 150 marks and your handwriting is average, average means if you don't give much space and your handwriting is normal, then 150 words can come in 1.5 page. That's it. Okay, अगर 250 words है
तो आपकी जो है पूरे 2 पेजेस आपके उसमें हो जाएंगे। टोटल आपको 26 पेजेस मिलते हैं, राइट, टोटल 26 पेजेस मिलते हैं आपको। यूपीएससी की एक आंसर बुकलेट जो आएगी, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी। इन्हीं पेजेस में हमें अपने 20 जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। और 20 क्वेश्चंस में देयर विल बी सम क्वेश्चन व्हिच विल बी 10 मार्कर एंड देयर विल बी सम क्वेश्चन व्हिच विल बी 15 मार्कर। 15 मार्कर में हमें वर्ड लिमिट जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप पूरे 2 पेजेस कंप्लीट कर सकते हो अपने 15 मार्कर के लिए। एंड फॉर 10 मार्कर यू कैन गो विद योर 1.5, राइट। वैसे इन जनरल अगर आप 3 पेजेस में भी चले जाओगे 15 मार्कर में, तो भी आपके पेजेस जो है इनफ रहेंगे, ऐसे बहुत कम पेजेस आपको नहीं मिलेंगे। सो पेजेस इन योर आंसर बुकलेट आर इनफ। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। नीट एंड क्लीन लिखना है, क्वेश्चन को फिर से आप बाद में अपने आंसर बुकलेट में नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द बेसिक, बहुत ही बेसिक बात है कि आपको इन जनरल आंसर बुकलेट में लिखना कैसे है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अच्छा, आपके सामने मेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको इमेजिन कर लेना कि जैसे मैंने बस ये एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिया है कि ये एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन आपके सामने आता है जीएस पेपर में। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे ही आएगा तो आपको बहुत क्लियरली उसको पढ़ना है। ये 3 स्टेप्स मैंने आपको पहले भी बताए थे लास्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू नीड द आर्टिकुलेशन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर विद इन टाइम बाउंड मैनर। इन टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You cannot write one question in like half an hour. Okay, you don't get half an hour to write one answer. तो हमें बहुत ही क्विक होना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस। Let's say this is your question. First of all, you need to understand. So, what is the meaning of understanding a question? आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ही क्लियर माइंड से कि उसने पूछा क्या है, बिना किसी प्रेजुडिसेस के कि मुझे तो टेम्पल आर्किटेक्चर आता ही नहीं है। कि आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में आपको कीवर्ड सामने आया टेम्पल स्कल्पचर, और आप कहोगे कि नहीं मेरा आर्ट एंड कल्चर तो अच्छा नहीं है, मैंने तो पूरे साल कुछ पढ़ा ही नहीं की। डोंट गेट दीज नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, not only in the examination, also when you are going to start your answer writing practice. Even if you don't know anything, at least sit silently and try to understand the question, right? So here the question is not that difficult. For example, you need right now the process is you need to identify the keywords and then you need to know what is the exactly the theme of the question. So what are the keywords here? अच्छा, ये ऐसा लिखना नहीं है keywords, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे keywords आपको identify करने हैं. How will you explain that medieval Indian? First of all, you need to talk about only medieval Indian temple architecture, नहीं temple sculpture, right? So things are going to be clear in your mind. वरना आप उसको holistically देख के ये मत सोचना कि नहीं टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है. नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर, दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली अबाउट टेम्पल स्कल्पचर. और वो भी मिडिवल इंडिया के जो टेम्पल है उनकी बात कर रहे हैं. गुप्तास के टाइम पे जो टेम्पल बने हैं, द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टेम्पल. So these three are the keywords: medieval Indian, temple and sculpture. Represent the social life of those days, right? So they are in the past only. तो उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. तो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है? मिडिवल आपका कीवर्ड हो गया, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर. ओके, राइट. और साथ में मेन कीवर्ड यहाँ पे है, यू नीड टू टेल अबाउट द हाउ दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर going to lead or going to tell us about the social life of that time, of those days, not the present day social life. हमें ये नहीं बताना कि उस टाइम के स्कल्पचर आज की लाइफ के बारे में क्या बताते हैं. हमें exactly stick to the question. Okay, exactly जो क्वेश्चन पूछा है, you need to understand that. बहुत आराम से एक बार भी इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार में अगर नहीं आपको समझ आ रहा, बहुत एंजाइटी हो जाती है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, उसके कीवर्ड्स जो है आइडेंटिफाई कर लेना. इट मींस द मोमेंट यू नो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट यूपीएससी इज एक्चुअली आस्किंग यू,
आपका जो आधा पेन है, आधा काम है, वो वहीं पे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू कैन सी व्हाट इज द थीम हियर। अच्छा, थीम हमें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए थीम को, क्वेश्चन को देखते ही थीम भी आइडेंटिफाई कर लेना। यहाँ पे क्या थीम रहेगी, जैसे बहुत ही बेसिक सी थीम है कि जो सोशल लाइफ है वो कैसे इम्पैक्ट, सॉरी स्कल्पचर जो है, आर्ट एंड कल्चर है, वो सोशल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। आर्ट इज इम्पैक्टिंग द सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ एज अ मिरर ऑफ द आर्ट, या फिर आर्ट इज द मिरर ऑफ द सोशल लाइफ। सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि आर्ट और सोशल लाइफ के बीच में क्या, आर्ट एंड सोशल लाइफ, how can we have any kind of link with the art? This is a very common link. आप कोई भी आर्ट उठा लो, चाहे वो लिटरेचर हो, स्कल्पचर हो, आर्किटेक्चर हो, डांस हो, किसी भी टाइम पीरियड का उठा लो, वो उस टाइम की जो सोशल लाइफ है उसको बहुत रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री का लिटरेचर उठा के देखोगे तो मिडिवल हिस्ट्री में मान लो आपने जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा हिंदी लिटरेचर अगर उससे उठाओगे, उसमें वुमेन की कंडीशन जो है वो आपको उसी टाइम की कंडीशन मिलेगी। जो वुमेन प्रेमचंद की कहानी में आपको मिलेगी वो आपको आज की वुमेन नहीं मिलेगी, वो उसी टाइम की मिले। तो लिटरेचर और आर्ट, एनी काइंड ऑफ आर्ट, नॉट ओनली लिटरेचर, स्कल्पचर, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, राइट। सो यूपीएससी कैन इजीली आस्क सच काइंड ऑफ थीम्स। यूपीएससी ये थीम्स आपसे बहुत आसानी से पूछ सकता है। अच्छा, अब आगे के लिए ये तो एक पीवाईक्यू है। अच्छा, इस पीवाईक्यू देख के आप आगे के क्वेश्चंस के लिए क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो कि यूपीएससी कैन आस्क सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कि सोशल लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर दिया। अब यूपीएससी कैन आस्क यू अबाउट द अदर थिंग्स ऑल्सो कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग वहां की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो भी आर्किटेक्चर भी ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट। अच्छा, जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर वैदिक टाइम की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो दीज क्वेश्चन शुड बी देयर इन माइंड। सो व्हाइल यू आर स्टडिंग और रिवाइजिंग योर बेसिक बुक्स, so you should have these points in your mind that UPSC is asking question on these lines. So whenever you are studying, you can actually think about it. तो आपकी जो thinking process है वो क्या होती है, improve होती है। That's why PYQs, understanding of PYQs, going through the PYQs again and again is very very important for this examination. Okay, तो हमने अंडरस्टैंड तो कर लिया है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो बस पूछा है कि मिडिवल इंडियन जो टेम्पल्स थे, अगर आपको पता है उसमें जो स्कल्पचर है वो स्कल्पचर उस टाइम की सोशल लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल लाइफ क्या होती है, सोशल लाइफ होती है उस टाइम का ऑक्यूपेशन क्या रहा, वुमेन की कंडीशन कैसी है, अच्छा उस टाइम पे सोसाइटी में इन जनरल क्या चल रहा है, हाउ इज द एस्थेटिक सेंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो दीज पॉइंटर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सोशल हायरार्की कोई है या नहीं है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर गोइंग टू टेल अस अबाउट द सोशल और सोसाइटी ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेकेंड पार्ट इज आर्टिकुलेशन। अच्छा, जो थीम आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है वो थीम को हम यूज करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन लिखने में, राइट। अच्छा, अब हम एक बार देखते हैं इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आर्टिकुलेशन करेंगे जब हम मेन बॉडी पार्ट लिखेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब आपने क्वेश्चन समझ लिया। अब सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, द मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट द थीम। तो सबसे आसान, बहुत ही आसान तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का कि जो थीम आपने एक्सट्रैक्ट की है उस थीम के बेस्ड पे ही अपना इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यू कैन बी इनोवेटिव इन एनी वे पॉसिबल। बस ये ध्यान रखना वो इंट्रोडक्शन ही लगे, वो कंक्लूजन ना लगे, और वो कहीं से भी जो पूछा है उससे अलग ना हो। अगर हमने बिल्कुल डिसकनेक्टेड को इंट्रोडक्शन लिख दिया, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स ऑफ दैट डिसकनेक्टेड कंटेंट विच यू हैव रिटन, इवन इफ द कंटेंट इज राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन temples in general, that India is a country where there were so many temples. If you are going to start with this, it means you are starting from the day one when the temple architecture started. So this is not required. You have to be the point. So how can you be the point? So जैसे इंट्रोडक्शन लिखने बैठते हो हमारा पेन क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो हम जैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम अटक जाते हैं। There are so many students. They are like
मैं मेन पार्ट तो लिख दूंगा कि आंसर में लिखना क्या है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। तो इंट्रोडक्शन में बस मैं 3-4 आपको ट्रिक्स बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आई विल टेल यू few basic ways how can you actually start writing your introduction. Once you are pro in writing your introduction, you don't even need my suggestions or anyone's suggestion. You can have any kind of innovation in your introduction. For example, the moment you know the theme, here the theme is art as a reflection of society. कि आर्ट ही सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है, आर्ट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो दिस इज द बेसिक थीम। अच्छा, अब इसी थीम को हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस थीम ओनली इन 2 to 3 लाइन्स। अच्छा, इसको 2 to 3 लाइन्स में लिखना जो है वो आपकी राइटिंग स्किल है, बेसिक, और कुछ नहीं है, ठीक है? दूसरा, अगर हमें थोड़ा सा हिस्टोरिक इंट्रोडक्शन लिखनी है तो हमें एटलीस्ट कुछ नाम पता होने चाहिए टेम्पल्स के। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इवन इफ यू डोंट नो इवन ए सिंगल नेम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बट यू नो सिंगल नेम ऑफ द टेम्पल ऑफ मिडिवल टाइम, बट यू नो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग द खजुराहो, ओके, 13th century टेम्पल। खजुराहो के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, हम बहुत बार पढ़ते भी है। अगर हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो we would be knowing that Sun Temple, okay, Kalinga School of Architecture is also medieval Indian architecture, temple architecture. You will be knowing the Hoysaleshwaras जो हैं, ठीक है, हेलीबिडू में, वो जो टेम्पल है, they are also your medieval Indian temple, right? तो अगर हमें कुछ एग्जाम्पल पता है तो it is very good. Even if you don't know, even if you know only one, okay, on the basis of that minimum knowledge also you can easily write this particular answer. अच्छा, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में फिर हम अपनी हिस्ट्री की जो नॉलेज है उसको यूज करेंगे। वी कैन एक्चुअली राइट विच आर द टेम्पल्स। तो ये टेम्पल्स के जो नेम्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स के जो नेम्स हैं, वी कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। बट इवन इफ यू डोंट नो द नेम्स ऑफ द टेम्पल, यू नो द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन का जो थीम है आर्ट एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यू कैन एक्सपेंड दिस थीम ऑल्सो इनटू 2 to 3 लाइन। थर्ड, अच्छा, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन तो आप सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस में लिख सकते हो, बट थीमेटिक इंट्रोडक्शन यू कैन राइट एवरीवेयर, ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन। बस आइडेंटिफाई द थीम, जो थीम दिमाग में आएगी, जो फ्रेज दिमाग में आएगा, उसी फ्रेज को आपको 2 to 3 लाइन्स में एक्सपेंड करना है। ये भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, एटलीस्ट यू विल गेट वन फ्रेज। अनदर वे इज एनालिटिकल इंट्रोडक्शन। अच्छा, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकअप। It means you are going to break what is actually asked. तो थीमेटिक इंट्रोडक्शन तो थोड़ी सी आपकी सब्जेक्टिव रहती है, एनालिटिकल इंट्रोडक्शन आपकी थोड़ी सी बहुत फैक्चुअल रहती है, बहुत डायरेक्ट और फैक्चुअल होती है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी इंट्रोडक्शन। जैसे थीमेटिक इंट्रोडक्शन में, एनालिटिकल इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? एनालिटिकल इंट्रोडक्शन हमें बिल्कुल एग्जैक्टली बताएगी कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना कि पूछा ही क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एनालिटिकल ओनली। तो एनालिटिकल में क्या कर सकते हैं? टू अंडरस्टैंड द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, टेम्पल स्कल्पचर सर्व्स एज क्रूशियल सोर्सेस। So this is the analysis. This is what actually the question was asking. Though their detailed carving, through their detailed carvings, they illustrate the roles, relations, and lifestyle of the people during that period. Again, very general. You need not specific knowledge or specific knowledge of many books here. ये तो बहुत आसान है। अच्छा, थीमेटिक इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते थे? सेम वही, आर्ट हैज ऑलवेज मिरर द सोसाइटी, where it emerges, right? तो ये तो आपकी फर्स्ट लाइन हो गई। फिर medieval Indian temple sculptures are not only religious in nature, they give us about the social life, they tell us about the cultural life, right? So this is how we can write our thematic introduction. तो थीमेटिक और एनालिटिकल इंट्रोडक्शन में मेजर डिफरेंस यही होता है, थीम जो समझ आई उसको इलैबोरेट करना, और एनालिटिकल में आप उसको जो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एनालिसिस कर देना कि इस एनालिसिस में क्या था, इस पूरी लाइन का एनालिसिस क्या है। इस लाइन का एनालिसिस यही तो है कि जो टेम्पल स्कल्पचर है मिडिवल टाइम के, वो मिडिवल सोसाइटी के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है, और उनकी जो डिटेल कार्विंग है वो हमें डिटेल्स
वो हमें पर्टिकुलरिटीज बताएगी उस टाइम के जो लोग हैं वो क्या करते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट आंसर. और थर्ड और सबसे सिंपल इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन हो सकता है कि इन medieval times temple architecture flourished. Temples were not merely the places of worship. These temples were the hubs of the cultural life of the people. और जो कल्चरल लाइफ वहां पे हैपन होती थी उन्हीं को डिपिक्ट कर दिया गया कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. ये आपकी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन होगी. अगेन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू हियर देयर इज नॉट ओनली one way to write introduction. So there can be many ways to write introduction, right? First of all, first point. The second point I wanted you to understand, if you struggle with writing your introduction, then start with the thematic introduction. The moment you understand the question, you know the theme, you just elaborate the theme only. But if you know the historical, if you know some facts about this particular line, whatever is there in the question, then you add those facts also. तो थीमेटिक में ऐसा नहीं है कि हम हिस्टोरिकल का एक पार्ट नहीं डाल सकते हैं. Obviously we can add that also. इस पर्टिकुलर लाइन के बाद we can talk about the खजुराहो, हर्षलेश्वरा and Sun Temple of Konark. Okay, these temples actually tell us about the detail carving, tell us about the social life of that time period, right? तो जब भी इंट्रोडक्शन रखना है, you need not to worry. एक तो confidence is the key. Okay, in life in general confidence is the key, but in answer writing you need confidence. Never ever think that whatever content you know, if you know very less content, never ever worry about it. You can easily elaborate on that. Now I am going to tell you that also. If you know very little, how can you expand that? For example, this question, this is a very specific question. Okay, this question is very specific. This question is not very general. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के लिए उसके बाद बहुत सारा कंटेंट नहीं होगा. इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होगा. तो हाउ आर यू गोइंग टू आर्टिकुलेशन? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू आर्टिकुलेट योर आंसर. आर्टिकुलेशन कैसे करनी होती है? अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताई ना कि थीम आपको निकालना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत फास्ट करना है. ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ. व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द पेपर, देन यू कैन बी स्लो इन द स्टार्ट, लेकिन विथ टाइम, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 3 months, तो टाइम के साथ उस स्पीड को अपने आप इंक्रीज करते रहना. कि वंस यू नो हाउ टू डू इट, यू विल डू इट. इनर्शिया आपके अंदर अपने आप आ जाएगा. अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन, राइट? तो आर्टिकुलेशन कैसे करनी है? अच्छा, आर्टिकुलेशन के लिए, आर्टिकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जैसे ये वर्ड है आर्टिकुलेशन, हाउ टू आर्टिकुलेट समथिंग. नहीं, आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि जो हमें पता है अब उसके बेसिस पे हम आंसर लिखेंगे बस. अच्छा, इसमें मेजर कीवर्ड क्या है? सोशल लाइफ. बताना क्या है? सोशल लाइफ के बारे में. क्वेश्चन आपको मेडिवल इंडियन टेम्पल के स्कल्पचर नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन ने आपसे नहीं पूछा कि खजुराहो के टेम्पल्स में जितने भी स्कल्पचर है उनको नोट डाउन करके पॉइंट वाइज लिख दो, या कोणार्क की जो सन टेम्पल है उसमें जो जो स्कल्पचर है उनको नोट डाउन करके आप पॉइंट वाइज लिख लो. नहीं, वो उनको हम मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और स्कल्पचर को मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे. You can only mention names of the temple. Even if you don't know the names of the temple, even then you can write this answer. Okay, right? So here, what UPSC has actually asked, they ask you about the social life. कौन सी social life? हमें medieval India की social life बतानी है in the light of the medieval Indian temple sculpture, right? अब हमें पहले ये देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली पता क्या है इसके बारे में. जैसे बहुत ही बेसिक से बातें पता है कि वहां पे डिफरेंट स्कल्पचर है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड स्कल्पचर्स ऑफ डांसर्स. ठीक है, डांसर्स की स्कल्पचर आपको मिलेगी वहां पे बहुत सारी. यू कैन फाइंड स्कल्पचर्स ऑफ हाउस होल्डर्स, राइट, डूइंग देयर डेली चोर्स, देयर डेली एक्टिविटी. दिस यू नो. Okay, you can find the sculptures of queen also. You can find the sculptures of kings also. Okay. You can find the detailed carving. अच्छा, detailed carving में क्या क्या आपको हमें पता होता है? For example, their unique clothing style, right? So you know about their clothing style, right? कि clothing style उनका कैसा होगा, hair style कैसा है, right? Okay. तो फैशन एस्थेटिक सेंस ये सब पता है. सो यू नो अबाउट दीज. अच्छा, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. आई नो इफ एनी वन ऑफ यू हैव
any one of you are done with your art and culture part, you are knowing that okay, this is very basic thing. Even if you have studied till 12th class, even then you know कि हमारे जो हमारे टेम्पल्स हैं उसमें इस तरह की स्कल्पचर होती ही हैं, ठीक है, ये सब हमें पता होता है। अब इसमें से हम आंसर कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये तो हमारे पास है फोल्डर। अब इस फोल्डर में से हम पूरा आंसर लिखना है हमें 150 वर्ड्स का, उसका मेन पार्ट। इंट्रोडक्शन तो हमने सीख लिया, जो मेजर थीम है उसी थीम को हमें क्या करना है, इलेबोरेट कर देना है, या फिर एनालिटिकल बन जाना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन या फिर हिस्टोरिकल बन जाना है। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। इन दिस 3 ways यू कैन स्टार्ट योर आंसर राइटिंग, देन यू विल फाइंड अनदर ऑल्सो। अब इसमें से ही हम निकालते हैं इसके, अच्छा हमें जब भी मेन बॉडी पार्ट लिखेंगे तो हमें उसको बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना है, और 150 का क्वेश्चन है तो 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर बहुत ज्यादा नहीं याद आ पा रहा है तो 3 बुलेट पॉइंट भी लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट। 5 तक भी ले जाओगे तो भी मोर देन सफिशिएंट। जितना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल बनोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बुलेट पॉइंट हमने बिल्कुल ही सिमिलर ही थीम पे लिख दिए, उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा, यहाँ पे अब अलग अलग थीम, अब अलग अलग इसके एस्पेक्ट निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फर्स्ट पार्ट। ओके, by looking at this folder, whatever folder is here, you can see that there are mention of dancers, householders, kings. So we can say that whatever the carving is here, there on these temple, on the walls of these temples, they actually show us the occupation of the people at that point of time, right? So we can say that this folder is actually telling us or depicting us about the occupation. So we can say that depiction of occupation. ये हमारी एक हेडिंग हम आराम से बना सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग। अच्छा, इसमें अब फोल्डर पॉइंट क्या लिखना है? अब कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फार्मर्स भी होंगे, ठीक है, फार्मर्स आर देयर, डांसर्स, और यू कैन से दैट आर्टिस्ट, ट्रेडर्स। अच्छा, फार्मर्स ट्रेडर फोल्डर का पार्ट नहीं थे, बट यू कैन easily understand if the dancer and householders are mentioned, then the other activities are also mentioned there. So there is the depiction of farmers also, dancers, traders, okay, artists. There are so many occupations. अच्छा, ये सब हाईलाइट क्या करेंगे, और हम लास्ट में एक लाइन जोड़ सकते हैं, highlighting the occupational diversity. Okay, diversity. तो हमारा एक पॉइंट बन गया, depiction of occupation. This is your heading. Then you can write, you can actually add examples here. If you know the name of the temples, then you can say that temples such as Khajuraho, Sun Temple of Konark, and Hoyshaleshwara Temple, they actually shows farmers, dancers, artists, and traders of that time, which actually highlight the occupational diversity of the medieval time. तो एक लाइन हमारे पास आ गई आंसर की। This is how you are going to articulate. जो फोल्डर है उसमें से ही हमने ये सारा निकाला है। अभी और बहुत सारी चीजें निकलेंगी। सेकेंड, और हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? अब हम देखते हैं यहाँ पे डांसर्स भी हैं, हाउस होल्डर भी है, क्वींस है, किंग है। तो कहीं ना कहीं हर तरह के लोगों को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो बहुत छोटा काम कर रहा था, चाहे वो किंग भी है। तो वी कैन से दैट सम काइंड ऑफ सोशल हायरार्की इज बीइंग शोन, social hierarchies are being shown. So this is going to be your second heading. अब social hierarchy कैसे दिखाओगे? There is depiction of kings, queens, and the common man also. householder कौन है? common man as well. Okay. और ये क्या शो कर रहा है फाइनली? It represents देखो हाईलाइट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग, हाईलाइटिंग, दीज आर द इंटरलिंकिंग वर्ड, ठीक है, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। रिप्रेजेंटिंग द सोशल ऑर्डर ऑफ दैट टाइम, राइट, ऑफ दैट टाइम। वेरी सिंपल, एक ही फोटो पॉइंट से हमारे 2 पॉइंट बन गए। कैन यू फाइंड समथिंग एल्स ऑल्सो? बहुत और कुछ भी निकल रहा है यहां से। देखो
ठीक है, क्लोथिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, डिटेल कार्विंग, दे कैन टेल अस अबाउट द फैशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हमें फैशन के बारे में बता रहा है, तो वी कैन से दैट फैशन और एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस of that time. So you can mention the detailed carvings on these temples. One liner is more than sufficient on these temples show clothing style, hairstyle of that time. अच्छा, ये क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? It shows the aesthetic sense of the people of that time. Okay, of the people of that time, right? तो एक पॉइंट हमारा बन गया। और इसमें से क्या आपका निकल के आ रहा है? देखो, डांसर्स, वुमेन कैन बी डांसर, वुमेन आर द पार्ट ऑफ हाउस होल्डर, क्वीन भी वुमेन है। अच्छा, क्लोथिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल में भी मेजर जो लीड कर रहा है वो कौन है? वो भी वुमेन है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा बन सकता है रोल ऑफ द वुमेन। ओके, वुमेन विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जब भी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी पूछे, यू कैन ऑलवेज मेंशन वुमेन। अच्छा, यहाँ पे क्या है? वुमेन आर बीइंग शोन इन डिफरेंट रोल्स, वुमेन आर बीइंग शोन in different roles such as they are being shown as dancers also, they are being shown as devotees also, they are being shown as queens also, right? And they are being shown as householders also, right? It means what it shows वो क्या शो कर रहा है? It shows the presence of women in, you can say, in social and householder है तो and private life. ओके, अभी इतना बोर्ड भी इतनी जगह है, तो हमारे पास आराम से इतने से फोटो पॉइंट से हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। अच्छा, ये आपको आएगा कैसे? ये आएगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस से इसी को तोड़ मड़ोड़ के जो भी हमारे पास फोल्डर पॉइंट है उसी को हमें बार बार अलग अलग तरीकों से सोचना है, उसकी डिफरेंट डायमेंशन बनानी है, उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनैलिटी। अगर मैं इसी पॉइंट को डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन को ही 4 पॉइंट में लिख देती कि नो दे आर डिपिक्टिंग द फार्मर्स ऑल्सो, फिर मैं सेकंड पॉइंट में लिखती नो ही डिपिक्शन ऑफ डांसर्स, वो डांसर्स को भी दिखा रहे हैं, फिर मैं लिखती नहीं वो तो आर्टिस्ट को भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो डायमेंशन एक डायमेंशन है तो उसके मार्क्स कम मिलेंगे। यहाँ पे आपकी डायमेंशन क्या होगी? मल्टीपल। अच्छा, जो एग्जामिनर है, और हेडिंग लिखने का क्या फायदा है? हेडिंग अगर एग्जामिनर को पूरा नहीं भी पढ़ना तो आपकी हेडिंग देख के एटलीस्ट वो ये पता लगा लेगा कि यस यू हैव मेंशन समथिंग डिफरेंट। सोशल हायरार्की, यस, फैशन, एस्थेटिक सेंस, रोल ऑफ वुमेन, 4 डिफरेंट डायमेंशन एंड यू हैव रिटन 1.5 line on each and every dimension। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड। अच्छा, एग्जाम्पल्स कैसे डालने होते हैं? ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स बोलते हैं ना, जीएस के क्वेश्चंस में पेपर 2 में करंट अफेयर आएगा, यहाँ पे तो ऐसा कोई करंट अफेयर आ नहीं सकता। यहाँ पे अगर हमें टेम्पल्स के नेम्स पता है या हमें कोई पर्टिकुलर स्कल्पचर ही पता है तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे इसके स्टार्टिंग में हम लिख सकते थे कि कल्चर्स एट खजुराहो, सन टेम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल, तो एग्जामिनर को ये पता था नहीं, जो स्टूडेंट है उसको एटलीस्ट नेम भी पता है मिडिवल इंडियन जो टेम्पल है उनके, तो वो लिख दोगे तो वो आपकी आंसर राइटिंग में एक वैल्यू एडिशन होगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, दिस इज द आर्टिकुलेशन। अच्छा, ऐसा आर्टिकुलेशन आप कंप्लीटली नहीं कर सकते कि रफ में इतना आर्टिकुलेशन करोगे फिर लिखने बैठोगे। रफ में बस आप इसका ये देखोगे कि ये मेरा फोल्डर पॉइंट है और इससे में ये 4 हेडिंग बना हुआ, ये 4 हेडिंग। आर्टिकुलेशन में स्टार्टिंग में बस आपको आर्टिकुलेशन में हेडिंग सोचनी है, जो अंदर का फोल्डर पॉइंट है वो प्रैक्टिस के साथ ना अपने आप ही आपको आ जाएगा। अंदर का फोल्डर पॉइंट आप डायरेक्ट लिखना, जब आप पेज में डायरेक्ट लिखोगे तो फोल्डर पॉइंट को डायरेक्ट लिखना, फोल्डर पॉइंट को आर्टिकुलेट करने मत बैठना। ठीक है, फिर भी अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो 1-2 पॉइंट लिख लेना, एंड दिस इज जस्ट फॉर द स्टार्ट।
जब आप फाइनल आंसर लिखोगे उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, आपने एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन पेपर में ही आर्टिकुलेशन कर लेना, अलग से पूरा पेज नहीं मिलेगा आपको। और क्वेश्चन आंसर बुकलेट में तो आर्टिकुलेशन बिल्कुल मत रखना, और जो साइड्स में मार्जिन दिए होते हैं उसमें कभी मत लिखना। आर्टिकुलेशन जब करोगे क्वेश्चन पेपर में ही कर लेना, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसी में लिख लेना कि अच्छा सोशल लाइफ में यहाँ पे स्लाइड में मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना सकता हूँ सोशल हायरार्की का, एक पॉइंट मैं बना सकता हूँ मेरा ऑक्यूपेशनल हायरार्की डाइवर्सिटी का, एक मैं रोल ऑफ वुमेन का, ठीक है, हेडिंग बना सकता हूँ, और एक हेडिंग में बना सकता हूँ किसका, हमारा फैशन और एस्थेटिक सेंस ऑफ दैट टाइम का, ठीक है। ये तेरी 4 हेडिंग्स हो गई। अब डायरेक्टली जब आंसर लिखोगे इन 4 हेडिंग को 1 2 3 करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैनर में हम लिख देंगे। So this is how you are going to write your main body part and how you are going to articulate an answer. Now come to your conclusion. Again, conclusion में भी most of the students are very much confused. जैसे introduction में क्या लिखना है वो नहीं पता होता। Introduction में एक मैंने बहुत ही basic आपको ट्रिक दे दी है कि थीम को पकड़ लेना और उसी थीम को आप एक्सपेंड कर देना। Conclusion में एक तो बहुत ही basic conclusion होता है, जो भी हमने पॉइंटर्स डाले हैं हमारे मेन बॉडी पार्ट में, ठीक है, आंसर के, उन्हीं कीवर्ड्स को उठाना है और उनसे हमने एक पूरी लाइन बना देनी है। जैसे यहाँ पे ऐसे किया। बेसिक कैसे होगा, medieval Indian culture serves the record of vibrant social life, custom, community interaction beyond religious devotion of that time। ये बहुत ही बेसिक सा आपका कंक्लूजन हो गया which you can write। एक थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल हो सकता है। जैसे ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट लाइन तो बहुत ही बेसिक रहेगी, ठीक है, रोल लाइफस्टाइल, अच्छा ये बात तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, बट हम उसके आगे थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं, दैट एंड द ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड सेकुलर थीम। देखो ये जितने भी थीम्स मैंने अभी आपको बताई हैं, जो भी आर्टिकुलेट करके आंसर लिखा है, उसमें कहीं भी बहुत रिलीजियस पार्ट नहीं था। एवरीथिंग वाज वेरी मच सेकुलर इन नेचर, वो बिल्कुल सेकुलर है। अच्छा, टेम्पल्स आर कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, सो रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उनके अलावा अगर सोशल एक्टिविटी, अगर सेकुलर एक्टिविटीज आर आल्सो बीइंग शोन ऑन दोस टेम्पल, so we can see that at that point of time, or this is the observation where which the kind of observation you are going to use in your conclusion। तो ये observation क्या बताती है कि उस टाइम में जो रिलीजन है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और जो सोशल एक्टिविटीज थे, ठीक है, जो सेकुलर एक्टिविटी है, they were not disjoint of each other, okay, they were very much intermingling। उसका मतलब ये है कि मे बी द डांसर यूज्ड टू डांस इन द टेम्पल्स, व्हिच वी हैव एविडेंस आल्सो, दैट्स व्हाई दोस डांसर्स वर डिपिक्टेड ऑन द टेम्पल्स। तो देयर इज अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअल एंड सेकुलर थीम शो रिलीजन एंड डेली लाइफ वर क्लोजली कनेक्टेड। ये हमारी फाइनल ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन पूछी नहीं थी, उन्होंने तो बस सोशल लाइफ के बारे में बताया था, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने किसमें इंक्लूड कर लिया, हमारे कंक्लूजन। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन कैसे आएंगी? ऐसा नहीं है कि जिस दिन पेपर लिखना शुरू करोगे आंसर उस दिन ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में आएगी। जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम एक टॉपिक से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा सोचना होता है, हमें एनालिटिकली भी चीजों को सोचना होता है। सिर्फ फैक्ट पे फोकस मत किया करो। व्हेनेवर यू आर रीडिंग एंड योर एनसीईआरटीज और योर बेसिक बुक्स, यू फोकस टू मच ऑन फैक्ट्स दैट प्लीज गॉड मुझे सारे फैक्ट्स याद हो जाए। नहीं, फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ फैक्ट पे फोकस मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आर रीडिंग योर न्यूज़पेपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉलिटी। पॉलिटी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली इशू, राइट, क्या टसल क्या चल रहा है स्टेट्स का, सेंटर का, उसको समझने की कोशिश करोगे तो आप इस तरह के ऑब्जर्वेशन बहुत ईजिली आपके माइंड में आ जाएंगे, एग्जाम लिखते वक्त भी आ जाएंगे। किसी चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से मत पढ़ो, ठीक है। whenever you are reading, read everything from a very subjective and analytical point of view also, and sometimes if you find a particular topic very interesting, think about that topic, have your own thoughts on that, ठीक है। अपने खुद के thoughts भी उसमें include किया करो, and you can easily use your thoughts in questions like this and in essay। So your conclusion, your essay writing skill, everything will be based on your analytical ability, that how you were reading your books when you were, actually going through them. Okay? So this is how I have shown you one example how you are going to, write your answer. मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीका बता दिया है।
बेसिक तरीका बताने का मतलब यही था। मैं तो आपको देखो थ्योरी में बताया, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तो इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। सिर्फ थ्योरी सुन लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपको इवेंचुअली अपने पेन पेपर उठा के उसको लिखना पड़ेगा, बिना देखे लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है इसी क्वेश्चन को और जो मैंने ही 4 पॉइंट बताए हैं वही पत्थर की लकीर है, वही 4 पॉइंट बन सकते हैं। नो, यू कैन मेक मैनी थीम्स, मैनी डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से आप 4 और हेडिंग्स निकाल सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिटिकल एबिलिटी। तो कोई भी क्वेश्चन ये मत सोचना कि ए हैज रिटन अ क्वेश्चन लाइक दिस सो दैट इज द ओनली करेक्ट वे। नो, इन सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग a question, an answer which is relevant to the question is the correct answer. Okay, it has nothing to do with the what the other people have written, what has actually given in the model answer. कि model answer में जो दिया है वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता। Okay, please ये जो thinking process है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। Now we are going to understand the marking scheme कि अब UPSC marking कैसे करती है। Obviously no one exactly knows how the marking scheme works, okay? लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो लोग सच में जो चेक करते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने कभी कभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मार्किंग स्कीम के बारे में बताया हुआ होता है। दूसरा, जैसा हम क्वेश्चन पेपर करके आते हैं और जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो, देन ऑल्सो द टीचर्स एग्जामिनर्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री दे कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ मैकेनिज्म and can predict that how the marking scheme in UPSC actually work, right? So let's understand that. First of all, relevance to the question is the most important thing is the relevance. If there is a question and you have written something which is not even related to the question, then you are not going to get any marks. Okay? सिर्फ वैदिक पीरियड वर्ड देख के वैदिक पीरियड को ही पूरा हमने पूरा उसको ए से लेके जी तक पूरा वैदिक पीरियड के बारे में लिख दिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज इट एक्चुअली आस्क्ड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। तो रेलेवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज द फोरमोस्ट थिंग। ओके, तो हमने डायरेक्टली एड्रेस करना है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम ऑफ ग्रिड चले गए या फिर हमने जेनरिक आंसर लिख दिया तो और बहुत लेस रेलेवेंट आंसर लिखा कि रेलेवेंट लिख दिया, कुछ पॉइंट्स उसमें रेलेवेंट है, कुछ पॉइंट्स उसमें रेलेवेंस नहीं है, बहुत सारा पार्ट। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं पूरा एक पैराग्राफ एक पेज सिर्फ इसी बारे में लिख देती कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं, कौन कौन से उसमें स्कल्पचर्स हैं, राइट, और मिडिवल इंडिया क्या था, कौन सा टाइम पीरियड था मिडिवल हिस्ट्री का, कौन कौन से उस टाइम पे किंग्स थे, नहीं, अगर मैं वो सब लिख देती तो वो रेलेवेंट ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं ये पॉइंटर्स लिखती, 4 पॉइंटर, तो जो मेजर आंसर, जो आंसर चेकर है, जो आप एग्जामिनर है, वो तो ये देखेगा ना यू हैव रिटन समथिंग विच वाज ऑफ ग्रिड ऑल्सो, सो इवन इफ इन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू राइट द करेक्ट आंसर, योर मार्क्स आर गोइंग टू गेट कट, आपके मार्क्स कट होंगे। तो इरेलेवेंट चीजें, इरेलेवेंट पॉइंटर्स हमें पेपर में लिखने ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कोई चीज रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है? क्वेश्चन खुद बताएगा। जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन ने सोशल लाइफ के बारे में पूछा तो वही बताना है, क्वेश्चन ने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में तो नहीं पूछा था, तो हमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं बताना। सोसाइटी में सब कुछ आएगा, वुमेन आएगी, कल्चर आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, पीपल आएंगे, राइट। सो ऑल दीज एस्पेक्ट आर बीइंग कवर्ड इन द सोशल लाइफ। अच्छा, यूपीएससी बहुत पूछती है हिस्ट्री के क्वेश्चन में सोशल डायमेंशन, तो सोशल डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल डायमेंशन बहुत कम पूछेगी, सोशल डायमेंशन यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है। किसी भी पीरियड का कोई भी एस्पेक्ट उठाएंगे और उसकी सोशल लाइफ, उसका कनेक्शन सोशल लाइफ से या उस टाइम की सोशल लाइफ आपसे पूछ लेती है, राइट। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी राइट। अच्छा, जो ये वर्ड्स देते हैं, डिस्कस करो, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा था डिस्कस। डिस्कस इज अ वेरी इजी थिंग, एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस। इट मींस यू कैन राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमें उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन मतलब कि इवैल्यूएट, जब वो कोई क्वेश्चन देगा तो कम से कम कोई ना कोई कंपैरिजन वो देगा क्वेश्चन में। क्रिटिकली एग्जामिन, हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता है क्रिटिकली एनालाइज द स्कल्पचर ऑफ द मिडिवल इंडियन टेम्पल, राइट, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम उस टाइम के जो स्कल्पचर्स है उसको फिर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है, उनकी उसके दोनों एस्पेक्ट हम बताते हैं, राइट। इट मैटर्स अ लॉट।
ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज योर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो है अंडरस्टैंडिंग, सो रेलेवेंस तो होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर कंटेंट, जो एग्जामिनर पढ़ेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा। एग्जामिनर के सामने सबसे पहले जब आपकी नोटबुक आएगी तो वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन देखेगा, उसमें सब कुछ आ गया, आपकी हैंड राइटिंग आ गई, द वे यू आर राइटिंग दैट इज ऑल्सो देयर, ओके क्लियर। आपको एक इंट्रोडक्शन लिखनी है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है। मान लो ये आपका पेपर है, तो इसमें यहाँ पे आंसर लिखते वक्त इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन लिखनी है। फिर हल्का सा स्पेस छोड़ के फिर यहाँ से हम पॉइंटर से मेन पॉइंट लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिखेंगे। यहाँ पे कंक्लूजन वर्ड भी नहीं लिखना, यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट वर्ड नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है। बट आंसर का फॉर्मेट आप ऐसा रखना। ऐसा क्यों रखना होता है आंसर का फॉर्मेट? एक पैराग्राफ में मैं क्यों नहीं पूरा आंसर लिख सकती? इज इट रॉन्ग? इट इज नॉट रॉन्ग, ये रॉन्ग नहीं है, और यूपीएससी ने बोला भी नहीं है आपको कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी पार्ट लिखो, फिर आप कंक्लूजन लिखो, नहीं। बट दिस इज अ मच बेटर वे इन जर्नल, ओके। जर्नल कंसेंसस ये है कि दिस इज अ बेटर वे। व्हाई दिस इज अ बेटर वे? बिकॉज दिस एक्चुअली शोज योर एबिलिटी दैट यू हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी हो या किसी भी इंसान के बारे में बताने, पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, देन यू टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, या फिर उसकी बैकग्राउंड बताओगे, फिर आप जाके ये बताओगे कि यस दिस पर्सन हैज डन दिस और नॉट, ओके। तो हम जो नॉर्मल डिस्कशन भी होती है, नॉर्मल भी किसी के बारे में बताना होता है, वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग योर आंसर। बुलेट पॉइंट यूज क्यों करना है? क्या हम मेन बॉडी पार्ट को पैराग्राफ में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर को पेन होगा पढ़ने में, क्योंकि उसको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अगर बुलेट पॉइंट में लिख दोगे तो वो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा अरे मेरा काम आसान कर दिया, मुझे बस एक ग्लिम्स डालना है और मुझे पता चल गया स्टूडेंट ने क्या लिखा है। अगर आप बहुत पैराग्राफ में लिखोगे, बहुत फ्लारी लैंग्वेज में लिखोगे, जो एग्जामिनर को ही समझ नहीं आएगी, तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू फील गुड अबाउट दैट। एग्जामिनर को ये चाहिए कि क्या जो पूछा था उसका आंसर लिख दिया है। उनको आपकी इंग्लिश ग्रामर तो खैर सही होनी चाहिए, आपकी अच्छी फ्लारी इंग्लिश, फ्लारी लैंग्वेज चेक नहीं करनी है। उनको रेलेवेंट मैटर चाहिए और उनको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए आपके आंसर में, स्पेशली इन दिस पार्ट। इस पार्ट में बहुत ऑब्जेक्टिविटी की जरूरत है। आपको अगर थोड़ी सी फ्लारी लैंग्वेज यूज करनी है तो यहाँ और यहाँ कर लो, यहाँ पे ट्राई टू बिकम ऑब्जेक्टिव, जो पूछा है उसका सीधा सीधा आंसर लिखो। अगर बुलेट पॉइंट यूज करेंगे इट इज ऑलवेज बेटर। यू कैन यूज फ्लो चार्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 एस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट भी लिख सकते हैं कि सोशल लाइफ, और फिर मैंने ऐसे करके 4 बॉक्सेस बना दिए और जो मेरे 4 पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो दिस इज अ फ्लो चार्ट टाइप योर आंसर। So you can write in this form also. You can make maps also. Especially there is a geography question. Geography का question है and they are asking about something, right? Then you can make a small map of India. Yeah. तो यहाँ पे आप छोटा सा इंडिया का मैप बना सकते हो, राइट? यू कैन प्रैक्टिस इट। और जो भी पूछा है अगर उसमें कुछ रेलेवेंट है वहां पे लगाने वाला तो उसको यूज कर सकते हो। मान लो दे आर टॉकिंग अबाउट द मॉनसून, तो यू कैन शो द मॉनसून वेव्स, राइट? अगर वो अल्नीनो लानीना के बारे में पूछ सक रहे हैं तो हल्का सा वर्ल्ड का मैप, बिल्कुल स्मॉल, बहुत ही छोटा सा ही बनाना है, वो बना सकते हो, बहुत ही रफ मैप, एंड यू जस्ट कैन शो के आई नो लानीना एंड अल्नीना। ये प्रेजेंटेशन क्या फायदा करेंगी किसी भी देखने वाले को? आप खुद समझो, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। When you see an answer which is only written in paragraph, maybe the content is very rich content, okay? So that doesn't mean कि examiner is not going to read your copy. Examiner is going to read your copy, but he is going to feel little bit of pain. No one wants to, do something extra in life. If something is very easy and presentable, then it is obviously easy for the examiner to check also. लेकिन अगर हम बुलेट पॉइंट में अच्छे से फ्लो चार्ट बना के मैप को यूज करके हमारा आंसर राइटिंग करेंगे तो एग्जामिनर इज गोइंग टू बी हैप्पी। देखो, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड कि वट एवर यू आर गोइंग टू शो, जो फाइनली आप शो करोगे, जो प्रेजेंटेशन है, दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है? जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ऑब्वियसली कंटेंट मैटर्स,
कंटेंट तो प्राइमरी है, तो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन तो मैटर है। अगर हमने रेलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं लिखा, उसके बाद कितना ही फ्लो चार्ट बना दो, इररिलेवेंट कंटेंट लिख रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है ईजिंग द पेन ऑफ द एग्जामिनर। जो एग्जामिनर आपकी को भी चेक करेंगे, उनके काम को इजी बना दो, उनके काम को इजी बना दोगे तो 1 और 2 बोनस पॉइंट +1 आपके, मान लो आपको इस क्वेश्चन में मिलने थे 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 10, लेट्स सी, उसको 4 देने वाला था वो आपको क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा प्रेजेंट करके बोला है तो यू कैन एक्चुअली गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 फॉर द सेम कंटेंट में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा है लेकिन आपने उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनाई है, ठीक है, ना ही प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, तो हो सकता है वो आपको 3.5 मार्क्स दे दे। तो योर मार्क्स कैन वेरी फ्रॉम 3.5 to 5 फॉर द सेम कंटेंट। सेम कंटेंट के लिए आपके मार्क्स वेरी हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन। सो दैट्स व्हाई प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। एंड इफ यू आर गेटिंग 1 extra marks in each question, so you know in every paper you are getting 20 marks, and in 4 paper you are actually going to get 80 marks. 80 marks matters a lot. Not only 80s, let's include essay and optional also. You can get more than 100 marks extra. More than 100 marks are very, very, it's a bulk when it comes to mains examination. Then obviously content quality also matter. अच्छा, एक होता है आपके पास कंटेंट, बेसिक कंटेंट है, ठीक है, यू कैन एक्चुअली गेट 3.5 to 4 मार्क्स इफ योर कंटेंट इज बेसिक। बट इफ यू आर फैक्चुअली एक्यूरेट, अगर हमने कुछ इनएक्यूरेट फैक्ट उसमें लिख दिया है तो अगर एग्जामिनर को पता लग गया कि अरे ये तो इनएक्यूरेट है, तो वो क्या जाएगा आपका थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा बेटर रहेगी उतना बेटर तरीके से यू आर गोइंग टू राइट। ये वो है जब एग्जामिनर इज गोइंग टू रीड योर आंसर, जो वो रीड करेगा उसको देख के ही पता चल जाएगा, बिकॉज एग्जामिनर इज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, तो एग्जामिनर को देख के पता चल जाएगा यस द पर्सन हैज द क्लैरिटी और नो। ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मल्टी डायमेंशनैलिटी मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल इन द सेम क्वेश्चन अगर मैं सिर्फ ऑक्यूपेशनल हायरार्की पे ही 4 पॉइंट बना देती तो दैट वुड हैव बीन अ 1 डायमेंशनल आंसर, ठीक है, चाहे लिखने को मैंने उसको 150 वर्ड्स लिख दिया, बट दैट would have been a 1 dimensional answer. Here you can expand your dimension, right? Some say that political, social and economic dimension लिख सकते हो, लेकिन वो हर क्वेश्चन में आपकी नहीं चलेगी। हर क्वेश्चन में आपको डायमेंशन डिफरेंट होगी। You cannot predict that I can focus on social, political, economic in each and every question. This you can do in essay. essay में तो एक ही essay आता है और मोस्टली अगर philosophical essay आता है तो philosophical essay लिखना easy रहता है as compared to the specific essay. अगर आपका आंसर बैलेंस्ड और अनबायस्ड है, अनबायस्ड प्रेजेंटेशन मीन्स मान लो कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमने अपने जो खुद के प्रेजुडिसेस, खुद के बायसेस जो है हमारी लाइफ के, उनको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा आपको एप्रिशिएबल होता नहीं है, ठीक है। हमें थोड़ा सा ये सोच के ही आंसर लिखना है, यू आर गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो, द होल ऑफ द कंट्री इज योर्स ओनली, so you cannot write something based on your caste preference, your religious preference or your ideological preference, your preference to a particular political party. So avoid all these biases when you are writing your answer, right? Again, use of example. ये सब चीजें हैं जो हमारी एडिशनल, हमारा जो बेसिक कंटेंट है उसको क्या बनाएगी, उसको स्पेशल बनाएगी। एग्जाम्पल्स को यूज करना, ठीक है, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एग्जाम्पल्स को कैसे यूज करेंगे? अगर इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस, यू आर गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम्पल्स की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी डेली अगर हैबिट में अगर न्यूज़पेपर रीडिंग है तो यू वुड बी नोइंग दीज एग्जाम्पल, ओके, ट्रस्ट मी। अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके पास ये एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे अगर एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन आए और एजुकेशन की पॉलिसी को आपने बार बार रिपीटेडली आपने अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो वो चीजें आपको उस टाइम पे एग्जैक्टली याद आ जाएंगी। यू कैन इजीली राइट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट है या फिर गवर्नमेंट का कोई डेटा है, वो बहुत आराम से आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। बट वो तभी है, इसका प्री कंडीशन है ये करंट अफेयर्स आपके करंट अफेयर्स ही हैं। ऐसा नहीं है आपको लास्ट के 1 महीने में बैठ के आपने सारी मैगजीन पढ़ डाली है, वो करंट अफेयर्स नहीं होता। करंट का मतलब करंट ऑन डेली बेसिस यू आर रीडिंग, डेली बेसिस रीड करते हो कोई भी न्यूज़पेपर
तो आपका एक फ्लो बनता है न्यूज का, ठीक है, हर एस्पेक्ट के बारे में, हर डायमेंशन के बारे में, हर टॉपिक के बारे में एक बिल्कुल एक आपका क्लैरिटी रहती है कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर इन आवर कंट्री। अगर बीच में कोई कोर्ट केसेस भी आएंगे या उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गई, उससे रिलेटेड कोई नया रूल एंड रेगुलेशन आ गया, कोई लॉ आ गया, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ गई, वो सारी चीजें आपके माइंड में अपने आप रहेंगी। और जैसे एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी करंट में जो भी रेलिवेंट मैटर था उसमें से एक रेलेवेंस पॉइंट उठा के हम अपने आंसर में भी डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस गवर्नमेंट स्कीम, सुप्रीम कोर्ट केसेस। इट इज एग्जांपल्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आएंगे, ठीक है, इसका और कोई सोर्स नहीं है। देयर इज नो सच बुक विच इज गोइंग टू गिव यू this is the book which is going to tell you about the examples to be written in your UPSC mains examination. Your newspaper is that book, okay. Now next part is your innovation and your value addition. The same thing I have discussed also. अगर आप बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हो, फ्लो चार्ट, कोर्स, SDGs को अगर यूज करोगे तो वो आपका एक वैल्यू एडिशन हो गया आंसर में, राइट। अच्छा, ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। It is very natural. Once you start writing your answer, your first few answers are going to be very bad, then next few answers are going to be very basic, then next answer are going to be above average, and then you are here where you are going to do all these things, you know, using data, budget, the pointers from the budget and the SDGs. You can remember the SDGs, you can have a chart, then you can mention that SDG. Obviously don't overdo anything. ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के हर आंसर में SDG ही लिख के आ रहे हो तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं उसके पास एक ही तरीका है। इट्स नॉट इनोवेटिव, ही इज जस्ट ट्राई टू पुट SDGs everywhere. Again, interlinking GS papers of topics by connecting polity with think. पॉलिटी के आंसर में सोसाइटल एस्पेक्ट अगर हमने कंक्लूजन में बता दिया या सोसाइटी के आंसर में पॉलिटिकल जो हमारे न्यूज है उससे एक पॉइंटर यूज कर दिया, तो दिस इज नोन एज इंटरलिंकिंग। ये इंटरलिंकिंग, ऑल दीज थिंग्स आर द इनोवेशन, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है। अच्छा, ये अगर तरीका आपने अपना लिया तो यू कैन एक्चुअली बिकम IAS। मतलब IAS का मतलब ये है कि आप टॉप रैंकर्स रहेंगे। लेकिन अगर बेसिक आंसर भी अगर आप पूरे 20 लिखाओगे तो भी रैंक आ जाएगा आपका। अगर बहुत बेसिक आंसर लिखोगे पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरे 20 के 20 रेलेवेंट आंसर लिखोगे बिना किसी इनोवेशन के, तो भी आप लिस्ट में होगे, आपका इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें ऐड करोगे तो यू can become topper as well. Okay? So this is the difference how these things are going to make difference. Now अब देखते हैं कि UPSC कैसे मार्क्स देती है। अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है तो UPSC can give you these marks. अच्छा, these are very highly unlikely someone is going to get these marks. और देखो आंसर राइटिंग की ना रिलेटिव होती है, हमें बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखना होता है, हमें बाकी लोगों से अच्छा आंसर लिखना होता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर के पास आज एक दिन में 100 कॉपीज उसको चेक करनी है, अगर उन 100 कॉपीज में योर आंसर इज द बेस्ट आंसर, इट मीन्स you will get very good marks. But if your copy is somewhere where all the answers of the question was like that, question was very easy, let's say everyone knew about the answer and everyone has written the answer in a very innovative way and everyone have shown their capability in that particular answer, then everyone's answer is going to be good answer, then your answer is only good answer, it's not excellent. So again, your answer is excellent, good or average, it depends on the relativity. So it is very relative. If you have written good answer, which are basically toppers right, excellent answer कुछ आंसर होते हैं, टॉपर की कॉपी में भी 1 या 2 ही एक्सीलेंट आंसर होंगे, अदरवाइज बाकी आंसर गुड रहेंगे, तो आपको 5 to 6.5 मिल जाएगा। एवरेज है तो 3 to 5 भी मिल जाएगा, पुअर और रेलेवेंट है तो 0 to 3 आवाज आपको मिलेंगे। अच्छा, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा हाई एंड पे ही बताया है, लेकिन जब आपको नॉर्मल कोचिंग में आपके आंसर चेक होते हैं कहीं भी तो आपको कम मार्क्स से देते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव, राइट। सो इफ यू आर गोइंग टू गेट 10 मार्क्स इन 10 मार्कर, तब फिर तो आप सोचोगे कि मुझे ही सब आता है, मैं क्यों आंसर राइटिंग। तो दैट्स व्हाई यू डोंट, हम एनकरेज नहीं करते हैं टीचर बहुत ज्यादा मार्क्स देना। 15 मार्कर में these marks can suffice, right? Again, don't worry much about how much marks you are going to get. You please focus on innovating your answer, right? अच्छा, again the same thing. UPSC चाहती क्या है? UPSC wants you to give general answer. The paper is a general studies paper.
So UPSC doesn't want you to do PhD on that. For example, in the question which I have shown you today, in that UPSC never wanted that you have done that the write the answer on the basis of the fact that you have done PhD in temple architecture. No, उनको बहुत ही बेसिक जर्नल आंसर ही चाहिए आपसे, बहुत स्पेशलिस्ट आंसर नहीं चाहिए, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. So whenever you worry about there is a question, I don't know much about it, so think that at least you know something. Out of that little bit something you can actually generate an answer. मार्क्स तो रिलेटिव होते हैं, ठीक है, परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता, बेटर आंसर रहते हैं. तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देख रहे हो तो बट इफ यू हैव अ गुड सराउंडिंग, इफ एवरीवन इज राइटिंग मेन, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बिकम बेटर. अगेन कंपनी मैटर्स. Examiners read hundreds of copies, so clarity, structure and direction stand out. If your answer is going to be something which is going to ease the pain of the examiner, obviously you are going to get much better marks. अच्छा, अब वर्ड लिमिट देख लेते हैं, कितनी वर्ड लिमिट हमें चाहिए होती है. जो 10 मार्कर क्वेश्चन होता है जीएस के पेपर में, उसमें 150 वर्ड होती है, और जो 15 मार्कर होता है उसमें 250 वर्ड होता है. इट इज मेंशन, ये मेंशन भी है आपकी, मतलब आपके हर you will get one question and out of this question answer in 150 words and there is a mention of mark. So 150 words are actually written in your GS paper. अच्छा, ऑप्शनल में नहीं लिखे होते हैं, राइट? ऑप्शनल में वर्ड्स नहीं लिखे होते हैं, सिर्फ मार्क्स लिखे होते हैं. यहाँ पे GS में आपको वर्ड भी मिलते हैं. अच्छा, एस्से में क्या है? ईच एस्से इज ऑफ 125 मार्क्स. टोटल 250 मार्क्स का आप एस्से का पेपर है. 2 एस्से आपको लिखने हैं, 2 essays you have to write and one essay is, each essay is 125 marks essay and you have to write the essay, one essay in 1000 to 1200 words. It is also mentioned, this is also mentioned in your paper, so these things will be mentioned. Now let's talk about the optional word limit. Again, word limit are not mentioned in optional paper. Optional का जो होता है क्वेश्चन and then there is only marks. तो ऑप्शन के पेपर में बस मार्क्स मेंशन होते हैं, वर्ड लिमिट मेंशन नहीं होती है. बट जनरली जनरल कंसेंसस इज दैट इफ देयर इज अ 10 मार्कर यू एटलीस्ट राइट 150 वर्ड्स. इफ देयर इज अ 15 or 20 मार्कर देन यू राइट 200 to 300 वर्ड्स. इन सम ऑप्शनल देयर आर 30 मार्कर आल्सो, देन यू कैन राइट दोज आंसर्स इन 400 प्लस वर्ड्स, राइट? अगेन यूपीएससी वर्ड्स काउंट नहीं करता, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग से एग्जामिनर उसी को देख के बता देता है, राइट? Now let's come to next aspect, that is time to write each answer. How much time you are going to get? UPSC is not going to tell you that this is the one question and you have to write this particular question in particular time period. No, there are 3 hours. In 3 hours you have to complete your 20 question. But हमें हर क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है, that is up to us. अगर 10 मार्कर है तो 7 मिनट में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो. अभी नहीं होगा, अगर बहुत स्टार्टिंग कर रहे हो, इफ यू आर वेरी बिगिनर, यू विल राइट वन गुड आंसर इन 20 मिनट्स और एक ही आंसर लिख पाओगे. लेकिन वहां हमें लाइन से लिखने हैं 20 आंसर, लाइन से हमें चर्न करना है 20 आंसर, 20 टॉपिक्स. ओके, सो दिस इज हाउ योर माइंड शुड वर्क. तो उसके लिए यू विल बी नीडिंग प्रैक्टिस. अच्छा, सुबह भी पेपर देना है, मॉर्निंग में होगा एक पेपर इवनिंग में होगा, तो योर पेशेंस इज गोइंग टू बी चेक्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो उसकी प्रैक्टिस यू डू प्लीज before actually going to be there in the examination. So you reduce your per answer time in 7 minutes if the answer is of 150 word. If the answer is 15 marker, then you reduce your time to 10 minutes. You can write that answer in 10 minutes. This is how you are going to complete your paper. Otherwise you won't be able to complete your paper. Essay में you have to write 2 essay. अच्छा, 2 essay लिखने होते हैं. You will be having 3 hours. It means 180 minutes. तो 180 मिनट्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो फर्स्ट 10 मिनट्स यू प्लीज, अच्छा ऑब्वियसली देयर आर 2 essays, तो फॉर 1 essay यू हैव टू डिवोट योर 90 मिनट्स, राइट? मतलब 1.5 hour. 10 मिनट्स में आप प्लानिंग करो, नेक्स्ट 70 मिनट्स में यू राइट योर एसे एंड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स यू प्लीज रिवाइज योर एसे. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव मिस्ड समथिंग, इफ यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग और यू हैव टू अंडरलाइन समथिंग, ओके, सो दीज 10 मिनट्स आर फॉर दैट. And this is how you are going to manage your answer. ये bifurcation UPSC नहीं देती है. This is general understanding. This is you have to devote your time to each and every essay. ऐसा नहीं है first essay लिखने में ही हमने 2 hours we have wasted to write one essay and for second essay you don't even have 45 minutes.
योर सेकंड ऐसे इज नॉट गोइंग टू बी दैट गुड। बेटर है कि हम बैलेंस लेके चले। बैलेंस का फायदा ये होता है, एक क्वेश्चन में या एक ऐसे में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ऐसा नहीं है 10 आउट ऑफ 10, 125 आउट ऑफ 125 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इफ यू हैव रिटन अ वेरी गुड आंसर, बट यू हैव कंज्यूम ऑल द टाइम। नो, बी वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अबाउट इट। एवरेज 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 करके जितने मार्क्स आएंगे उतने एक्सीलेंट एंड पुअर, उसमें आपके मार्क्स क्या है फाइनली कम आएंगे, राइट? सो गिव इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी essay, ठीक है? बी वेरी क्लियर अबाउट इट। Okay, so this was all about today's session, and I hope you understood how to start your answer writing. Obviously we are going to have other such videos where we are going to make you understand how to write your PYQs. Okay, we will continue this answer writing sessions for you. So till then, thank you so much. Have a very, very nice day.